as well. Your lecturer is same, Dr. Syed Zulfikar Ali Shah. As usual, before going towards today's lecture, why not to have the summary of last lecture? So let's have the summary. In the last class, we discussed concept and rules of Mudaraba. In very much detail, we talked about the concept of Mudaraba, in which we started Mudaraba with the intro, with the definition and the other things, and then we talked about its scope. Then we talked about multiple rules which are applicable to Mudaraba, and after that we summarized that as well. And then we talked about Mudaraba distinguished from Musharaka. What is the difference between Mudaraba and Musharaka? We discussed it in very much detail. And then the very important thing of Islamic finances, or the financial instruments, where actually financial instruments play their role, that is modern corporations and joint stock companies. We discussed a lot about joint stock companies. I hope you would have remembered all of the discussion which we had in the last class. So our today's plan include modern application of the concept of shirka. Shirka के concept की modern application क्या है? We'll start from here. Then we'll talk about diminishing musharaka. Then we'll talk about diminishing musharaka as an Islamic mode of finance. And after that, we'll discuss summary and conclusion of whole of the chapter, whatever we discussed. So if you guys are ready, let's start. Okay. Modern application of the concept of shirka. Keeping in mind the broad principles and the concept of shirka, musharaka and mudaraba can be used for evolving a new system. शिरका के बेसिक प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए मुशारका और मुदारबा को मिलाकर हम एक नया सिस्टम जनरेट कर सकते हैं, बोथ ऑन द लायबिलिटीज़ एंड एसेट साइड ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. फाइनेंशियल सिस्टम की दोनों साइड्स पर, चाहे वो एसेट साइड है चाहे वो लायबिलिटीज साइड है. दैट कन्फर्म्स टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शरिया एंड ऑल्सो फुलफिल्स द नीड्स ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस. जो फुलफिल करता हो शरिया की रिक्वायरमेंट्स को और फुलफिल करता हो नीड्स ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस एज वेल. तो शिरका के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हुए मुदारबा और मुशारका को मिलाकर एक नया सिस्टम बना सकते हैं जो शरिया के अहकामात के मुताबिक हो और आज के ट्रेड और बिजनेस को भी सही लेकर चलता हो. इट मे टेक द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट फर्म्स, म्यूचुअल फंड्स, मुदारबा कंपनीज, इंडिविजुअल और मल्टी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज by fund managers, business participation certificates, musharaka agreements, project financing, running musharaka and partnership business, certificates of investment or diminishing musharaka for facilitating financing fixed assets, trade and services. तो ये जो हम दोनों को मिलाकर एक सिस्टम के अंदर, शरिया कंप्लायंट सिस्टम के अंदर लेकर चल सकते हैं किसी नए फाइनेंशियल सिस्टम को, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? उसमें हम लोग कॉर्पोरेट फर्म्स नई इस्टेब्लिश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स बना सकते हैं. आपको पता है म्यूचुअल फंड क्या होता है? जब छोटे छोटे से इन्वेस्टर्स आपस में मिलकर अपना फंड किसी एक जगह पर पूल इन करते हैं और उसको मैनेज करने के लिए कोई एक प्रोफेशनल अपॉइंट करते हैं जो कि प्रोफेशनल भी होता है, क्वालिफिकेशन वाइज भी और एक्सपीरियंस वाइज भी, और मार्केट को जानता भी है, उसको मैनेज करने के लिए बनाते हैं. तो जो पूल ऑफ फंड है दैट इज नोन एज एक्चुअली म्यूचुअल फंड. फिर हम मुदारबा कंपनीज बना सकते हैं. अभी रिसेंटली पढ़ा हमने लोगों ने मुदारबा कंपनी क्या होती है. देन वी कैन टॉक अबाउट इंडिविजुअल और मल्टी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज बाय फंड मैनेजर्स. एक इंडिविजुअल या मल्टी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज बाय फंड मैनेजर्स. बिजनेस पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स, ये फॉर्म बना सकते हैं. मुशारका एग्रीमेंट्स, ऑफ कोर्स नए मुशारका एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, किसी सिंगल प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के बारे में बात कर सकते हैं. रनिंग मुशारका एंड पार्टनरशिप बिजनेस. सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिमिनिशिंग मुशारका फॉर facilitating financing fixed assets, trade and services. तो combination of shirkatul amwal and shirkatul mal, a combination of shirkatul amwal and shirkatul amal can be used for service firms of the modern age in medicine, law, IT, architecture and other fields. तो जो कॉम्बिनेशन है शिरकातुल अमवाल और शिरकातुल अमल का, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है सर्विस फर्म्स के अंदर भी, जहाँ पर आप जो है वो मॉडर्न एज इन मेडिसिन के ऊपर काम कर सकते हैं, लॉ के ऊपर काम कर सकते हैं, आईटी पर, आर्किटेक्चर पर या
दूसरी फील्ड्स के ऊपर। नंबर 1, यूज ऑफ शिरका ऑन द डिपॉजिट साइड ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर की डिपॉजिट साइड पर शिरका का क्या इस्तेमाल हो सकता है? अकॉर्डिंग टू द शरिया प्रिंसिपल्स, वट एवर इज परमिसिबल फॉर एन इंडिविजुअल इज ऑल्सो परमिसिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। शरिया के मुताबिक जो एक बंदे के लिए जायज़ है वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी जायज़ है। बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, शिरका विच कन्वेंशनली वॉज एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, इसी असूल की बेसिस पर शिरका जो कि कन्वेंशनली एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट था, कैरिड आउट बाय एन ओनर ऑफ फंड्स विद अ मुदारिब, ये कैरी आउट होता है एक इंडिविजुअल से जो कि मुदारिब है, हैज़ नाउ बिकम अ ग्रुप एक्टिविटी, अब ये ग्रुप एक्टिविटी में कन्वर्ट हो चुका है। द मेन रिलेशनशिप बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड इस्लामिक बैंक्स इज दैट ऑफ फाइनेंशियर एंड मुदारिब्स। अब जो मेन रिलेशनशिप है डिपॉजिटर और इस्लामिक बैंक के दरमियान, ये फाइनेंसर का और मुदारिब का है। ऑल डिपॉजिट्स आर पूल्ड, तमाम पैसे को इकट्ठा किया जाता है। द बैंक इन्वेस्ट द पूल अमाउंट इन बिजनेस, बैंक इस इकट्ठी अमाउंट को बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर चार्ज टू द पूल, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो पूल को चार्ज किए जाते हैं। While expenses related to the general management or head office expenses are borne by the bank मुदारिब itself. जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो चार्ज किए जाते हैं इस पूल को, जबकि एक्सपेंसेस जो कि जनरल मैनेजमेंट ऑफ हेड ऑफिस से रिलेट करते हैं वो बैंक बॉर्न करता है या मुदारिब itself. And the net proceeds are distributed among depositors according to the stipulated ratios. और जो net proceeds हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं डिपॉजिटर्स के दरमियान as per their stipulated ratios जो already decided है. Different weightages can be assigned to different depositors depending upon their tenure and size. Different weightages assign की जा सकती हैं different depositors को उनके tenure और size की basis पर, subject to the condition of sufficient disclosure of all depositors. अगर sufficient disclosure दिया जाता है तमाम depositors का, of course तभी आप इनको कुछ specific preference दे सकते हैं। For the purpose of profit distribution among partners, there is constructive liquidation after a tenure or accounting period. Profit distribution के लिए partners के दरमियान एक constructive liquidation की ज़रूरत होती है tenure और accounting period की, and then the joint relationship starts afresh for the next accounting period. और फिर एक joint relationship अगले period के लिए नए सिरे से start होता है। Second is use of shirka on asset side. The best alternative to interest for financing by banks is considered to be a shirka arrangement that could be in the form of mudarba. जो बेस्ट अल्टरनेटिव है इंटरेस्ट फॉर फाइनेंसिंग का बैंक्स के लिए, वो शिरका अरेंजमेंट को बोला जाता है जो कि मुदारबा की फॉर्म में लिया जा सकता है। मुशारका और इन्वेस्टमेंट्स थ्रू शिरका बेस्ड सर्टिफिकेट्स और सुकूक, मुदारबा, मुशारका या इन्वेस्टमेंट्स जो कि हम सुकूक सर्टिफिकेट्स के थ्रू लेते हैं। Mudarba can be best used for financing of import trade on a single transaction or consignment basis in the case of a firm order and LC without margin. मुदारबा बेस्ट यूज़ किया जा सकता है फाइनेंसिंग के लिए फॉर इम्पोर्ट ट्रेड के लिए एक सिंगल ट्रांजेक्शन या कंसाइनमेंट बेसिस के लिए इन केस ऑफ फर्म ऑर्डर या फिर LC विदाउट मार्जिन के लिए। where the whole investment has to be made by the bank, जहाँ पर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बैंक ही को करनी होती है। Its use is also possible for running business, project financing and for the purpose of securitization. इसका इस्तेमाल पॉसिबल है रनिंग बिजनेसेस के अंदर भी, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर भी एंड फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एज वेल। मुशारका कैन बी अप्लाइड इन ट्रेड फाइनेंस विदाउट कॉम्प्लेक्सिटीज। मुशारका को अप्लाई किया जा सकता है ट्रेड फाइनेंस के अंदर किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी के बगैर, सिंस द चांसेस ऑफ फ्रॉड, नेग्लिजेंस एंड द अदर प्रॉब्लम्स आर रिलेटिवली लोअर इन इंटरनेशनल ट्रेड देन इन अदर मुशारका बेस्ड प्रोजेक्ट्स। चूंकि चांसेस ऑफ फ्रॉड जो है या नेग्लिजेंस जो है या फिर कोई और प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिलेटिवली लोअर हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर मुशारका बेस्ड प्रोजेक्ट्स में। अ बैंक में एंटर इनटू अ मुशारका अरेंजमेंट विद अ क्लाइंट हु इंटेंड्स टू, बैंक मुशारका अरेंजमेंट में दाखिल हो सकता है एक क्लाइंट के साथ जो कि जिसकी इंटेंशन है इंपोर्ट की। द बैंक में ऑल्सो अपॉइंट हिम एज एजेंट फॉर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द गुड्स।
बैंक इसको अपॉइंट कर सकता है कि एजेंट के तौर पर भी फॉर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स आफ्टर द सेम आर इम्पोर्टेड, जब उनको इम्पोर्ट कर लिया जाए चीज़ों को। एन LC कुड बी ओपन इन द बैंक्स और द क्लाइंट्स नेम, एक LC खोली जा सकती है बैंक या क्लाइंट के नाम पर। द नेट प्रॉफिट आउट ऑफ दिस लिमिटेड पर्पज मुशारका विल बी शेयर्ड बिटवीन द बैंक एंड द क्लाइंट इन एन एग्रीड रेशो। ये जो नेट प्रॉफिट है आउट ऑफ दिस लिमिटेड पर्पज मुशारका में ये शेयर होगा बैंक और क्लाइंट के दरमियान एग्रीड रेशो के मुताबिक, जो पहले से डिसाइडेड होती है। द above procedure can also be adopted in respect of bills drawn under inland LCs। ये जो प्रोसीजर है इसको अडॉप्ट किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू द बिल्स जो कि LC के अंदर ड्रॉ किए जाते हैं। The following may be the flow of transactions in the case of मुशारका for running businesses। मुशारका के अंदर रनिंग बिजनेसेस के लिए फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से स्टैब्लिश हो सकता है। नंबर 1, a running मुशारका अकाउंट फॉर द क्लाइंट विल बी ओपन्ड इन द बुक्स ऑफ द फाइनेंसिंग बैंक। एक रनिंग मुशारका अकाउंट खोला जाएगा क्लाइंट के लिए बैंक फाइनेंसिंग बैंक की किताबों में। द क्लाइंट्स प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ फिनिश्ड ऑफ गुड्स विल बी क्रेडिटेड इन द रनिंग मुशारका अकाउंट। क्लाइंट की प्रोसीड्स जो हैं सेल से फॉर द फिनिश ऑफ गुड्स ये क्रेडिट होंगी रनिंग मुशारका अकाउंट के अंदर। देन द क्लाइंट्स कैश फ्लोज जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल सेल प्रोसीड्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड कैश फ्लोज फ्रॉम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म फाइनेंस अवेल्ड फॉर द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी क्रेडिटेड इन द रनिंग मुशारका अकाउंट। क्लाइंट की जो कैश फ्लोज हैं जो जनरेट होंगी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से, फॉर एग्जांपल सेल प्रोसीड्स हैं डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट से, और कैश फ्लोज हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म फाइनेंस है जो कि प्रोजेक्ट के लिए अवेल किया जाता है, कैन नॉट बी क्रेडिट इन द रनिंग मुशारका अकाउंट। इसको रनिंग मुशारका अकाउंट के अंदर ऑफ कोर्स क्रेडिट नहीं किया जा सकता। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ रनिंग मुशारका लिमिट, all the clients of the bank will be divided into the following 3 categories। ये जो पीरियड डिटर्मिनेशन है रनिंग मुशारका की लिमिट के लिए, तमाम क्लाइंट्स ऑफ बैंक जो है इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा: सीजनल, साइक्लिकल एंड कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन। सीजनल, साइक्लिकल और जो कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन है वो। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर और मंथ, एज द केस में बी, the profit earned by the client in the मुशारका will be paid to the bank। हर क्वार्टर या महीने के आखिर पर कोई भी केस हो, प्रॉफिट जो अर्न होगा क्लाइंट से मुशारका के केस में ये पे किया जाएगा बैंक को। द प्रॉफिट शेयरिंग विल बी बेस्ड ऑन द कंप्यूटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग जो है ये जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट होगा उसकी बेसिस पे होगा फॉर द सेम पीरियड फॉर विच द रनिंग मुशारका लिमिट वॉज अवॉर्डेड। उस पीरियड के लिए जो प्रॉफिट कंप्यूट हुआ, जिस पीरियड के लिए रनिंग मुशारका की लिमिट अवॉर्ड हुई, वो ऑफ कोर्स प्रॉफिट शेयरिंग उसकी बेसिस पर होगी। शिरका कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग थ्रू द परचेज ऑफ मुशारका मुदारबा सर्टिफिकेट्स लाइक शिरका बेस्ड सुकूक। शिरका इस्तेमाल किया जा सकता है फाइनेंसिंग के लिए थ्रू परचेज ऑफ मुशारका या मुदारबा सर्टिफिकेट्स, जैसे शिरका बेस्ड सुकूक है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हैं जिनको TFCs बोलते हैं, या पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स जिन्हें PTCs बोलते हैं। इशूड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शिरका आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये सर्टिफिकेट जो कि प्रिंसिपल ऑफ शिरका पे इशू किए जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इशूड बाय कंपनी इन कंसिडरेशन ऑफ एनी फंड, किसी भी फंड की कंसिडरेशन में जो होता है, मनी और अकोमोडेशन रिसीव्ड, पैसा या जो अकोमोडेशन मिली, और टू बी रिसीव्ड बाय इट, या जो मिलेगी, वेदर इन कैश और इन काइंड, चाहे वो कैश में है चाहे वो इन काइंड है, और अगेंस्ट एनी प्रॉमिस, किसी भी प्रॉमिस के अगेंस्ट, गारंटी, किसी भी गारंटी के अगेंस्ट, अंडरटेकिंग और इंडेमनिटी इशूड फॉर इट्स बेनिफिट, कोई अंडरटेकिंग या कोई इंडेमनिटी जो इशू हुई इसके फायदे के लिए। द प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हैजर्ड वुड बी मच लेस इन द केस ऑफ TFCs, PTCs देन इन द केस ऑफ डायरेक्ट मुशारका इन्वेस्टमेंट्स। ये जो प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हैजर्ड है ये मच लेस होगा इन केस ऑफ TFCs या PTCs देन डायरेक्ट मुशारका इन्वेस्टमेंट्स। However, banks indicate a number of risks and problems in the case of shirka based financing। जबकि बैंक्स
बहुत किस्म के रिस्क और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं शिरका बेस्ड फाइनेंसिंग के अंदर. फॉर एग्जांपल, द मैनेजिंग पार्टनर मे मैनिपुलेट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन ऑर्डर टू डिसीव द इस्लामिक बैंक. मैनेजिंग पार्टनर जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इस्लामिक बैंक को धोखा देने के लिए. दे मे बी अनविलिंग टू डिस्क्लोज एक्चुअल प्रॉफिट्स टू द बैंक. वो हो सकता है अनविलिंग हो डिस्क्लोज करने के एक्चुअल प्रॉफिट बैंक को, एक्सपोजिंग इट टू द रिस्क ऑफ रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट. गारंटी और कोलैटरल कैन बी टेकन ओनली टू सेफगार्ड अगेंस्ट नेग्लिजेंस एंड मिसकंडक्ट. गारंटी या जो कोलैटरल है वो लिया जा सकता है सिर्फ सेफगार्ड करने के लिए, नेग्लिजेंस या मिसकंडक्ट के अगेंस्ट. द पार्टनर्स मे एलोकेट इनडायरेक्ट एंड पर्सनल एक्सपेंसेस इन मुशारका ऑपरेशंस. पार्टनर्स जो हैं ये एलोकेट कर सकते हैं इनडायरेक्ट या पर्सनल एक्सपेंसेस को मुशारका ऑपरेशंस में. लीगल कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द गारंटर्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मुशारका कॉन्ट्रैक्ट. ये जो लीगल कैपेसिटी है, लीगल आइडेंटिटी जो है वो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है गारंटर्स की, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए मुशारका कॉन्ट्रैक्ट से. द इस्लामिक बैंक एज द बाइंग पार्टनर इन अ डिमिनिशिंग मुशारका may be exposed to fluctuations in unit price if it is not fixed at the beginning of the contract. Islamic Bank जो है as buying partner in diminishing मुशारका, ये भी expose हो सकता है multiple fluctuations का unit price के केस में अगर इसको fix नहीं किया जाता in the beginning of the contract. The main obstacles in the way of widespread use of मुशारका stem from the lack of documentation. जो मेन ऑब्स्टिकल्स हैं वो मुशारका के वाइड स्प्रेड होने में ये लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन से ओरिजिनेट होते हैं. डिफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम ठीक ना होने की वजह से, एंड द लैक ऑफ एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द बैंकर्स देमसेल्व्स, और ऑफ कोर्स ड्यू टू द लैक ऑफ एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ बैंकर्स देमसेल्व्स. जो बैंकर्स हैं उनकी लैक ऑफ एफर्ट्स की बेसिस पर भी. इन द व्यू ऑफ दिस ऑथर, Islamic banks have not made serious efforts to apply this system. इस ऑथर के व्यू में जिसकी बुक हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इस्लामिक बैंक्स जो हैं ये हैव नॉट मेड सीरियस एफर्ट्स, इन्होंने कोई सीरियस एफर्ट्स नहीं किए अब तक इस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए, सिंपली बिकॉज ऑफ द ईजी एंड लेस रिस्की अल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन मुराबहा एंड लीजिंग. सिंपली उसकी रीज़न ये है क्योंकि ईज और लेस रिस्की अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं मुराबहा और लीजिंग के केस में. मुशारका कुड हैव बीन सेफली अप्लाइड एट लीस्ट फॉर ट्रेडिंग एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग. मुशारका को बड़ी सेफली अप्लाई किया जा सकता है फॉर द ट्रेडिंग एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए इफ दे हैड अंडरटेकन सम रिसर्च, अगर उन पर कुछ रिसर्च किया जाए, and taken initiatives to realize the potential of this most preferable mode of Islamic finance. और अगर कुछ initiatives लिए जाएं इसको realize करते हुए कि इसमें बहुत ज़्यादा potential है Islamic finance के modes के अंदर. In the following pages we shall give some case studies in this regard. तो शायद हम कुछ case studies भी discuss करेंगे इस context में. Then securitization on a shirka basis. Shirka basis पर securitization. A security in financial terms can be defined as an asset in the form of a paper. Security जो है financial terms के अंदर एक asset के तौर पे define किया जाता है जो कि एक पेपर की फॉर्म में होता है. Whose cash flow is backed by a pool of liquid and tangible assets. जिसका cash flow जो है ये bound होता है pool of liquid और tangible assets के साथ. Through securitization, tangible and non-liquid assets of joint business are made negotiable through the sale of shares or certificates in the financial market. Securitization के through tangible और जो non-liquid assets हैं joint businesses के, इनको negotiable बनाया जाता है through the sale of shares or certificates, shares या certificates की sale के साथ financial markets के अंदर. Next is diminishing musharaka. The participatory contracts that may be more suitable for financing of fixed assets and present-day ongoing projects, particularly for financial intermediaries, can be based on the concept of diminishing musharaka. ये जो participatory contracts हैं जो कि ज़्यादा suitable हैं fixed assets को finance करने के लिए या आज के जो ongoing projects हैं उनको finance करने के लिए, ख़ास तौर पर financial intermediaries
के लिए इसको कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मुशारका पर बेस किया जा सकता है। इन द डिमिनिशिंग मुशारका कॉन्ट्रैक्ट, अ पार्टी आफ्टर पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप ऑफ एनी बिजनेस और प्रोजेक्ट कैन लिक्विडेट हिज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द एसेट और द ऑनगोइंग बिजनेस। डिमिनिशिंग मुशारका के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी जो पार्टिसिपेट करती है ओनरशिप के अंदर किसी भी बिजनेस या प्रोजेक्ट की, वो लिक्विडेट कर सकती है अपनी इन्वेस्टमेंट को उस एसेट में से या उस बिजनेस में से आफ्टर पार्टिसिपेशन इन इन्वेस्टमेंट। द ज्यूरिस आर यूनानिमस ऑन द परमिसिबिलिटी ऑफ द अरेंजमेंट। ज्यूरिस जो हैं वो यूनानिमस हैं, इसके ऊपर किसी को कोई इशू नहीं है कि ये होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इसकी इजाजत इज देयर। डिमिनिशिंग मुशारका कॉन्ट्रैक्ट्स कंटेन अ सेल प्रोविजन। डिमिनिशिंग मुशारका कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक सेल प्रोविजन होती है, अकॉर्डिंग टू विच वन पार्टनर मेक्स अ प्रॉमिस टू सेल हिज पार्ट ऑफ ओनरशिप टू द अदर पार्टी पीरियोडिकली। डिमिनिशिंग मुशारका के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक सेल प्रोविजन होती है जिसके अंदर एक पार्टनर वादा करता है अपना हिस्सा ऑफ ओनरशिप बेचने का दूसरी पार्टी को पीरियोडिकली। एज डिस्कस्ड अर्लियर, jurists have opined that promises are enforceable। जैसे पहले डिस्कस किया जा चुका कि ज्यूरिस इस ओपिनियन में है कि जितने भी वादे होते हैं वो एनफोर्सेबल होने चाहिए और होते हैं। एंड अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन कंपेल अ प्रोमिसर टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। और कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो प्रोमिसर को कंपेल कर सकती है कि वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करे, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज, खास तौर पर कमर्शियल एक्टिविटीज के केस में। डिमिनिशिंग मुशारका एज अ फाइनेंसिंग टेक्निक however is a new type of contract। डिमिनिशिंग मुशारका जो है एक फाइनेंसिंग टेक्निक के तौर पर एक नई टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, suggested by contemporary jurists keeping in mind the problems perceived while discussing the traditional musharaka और मुदारबा principles in the broader economic perspective। जिसको सजेस्ट किया है कंटेम्प्रेरी jurists ने, जो मसाइल आते हैं मुशारका या मुदारबा प्रिंसिपल्स के अंदर ब्रॉडर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के अंदर, उनको जहन में रखते हुए ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट निकाला है इन्होंने, दैट इज डिमिनिशिंग मुशारका। डिमिनिशिंग मुशारका कैन बी कंडक्टेड बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप इन ओनरशिप शिरकतुल मिल्क एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनरशिप शिरकतुल अक्द। डिमिनिशिंग मुशारका किया जा सकता है दोनों केसेस में, पार्टनरशिप ओनरशिप के केस में भी जिसे शिरकतुल मिल्क बोलते हैं, और कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनरशिप शिरकतुल अक्द के केस में भी। बट सम क्रूशियल डिफरेंसेस बिटवीन द टू हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू एंश्योर शरिया कंप्लायंस। लेकिन कुछ क्रूशियल डिफरेंसेस जहन में रखने पड़ते हैं दोनों के दरमियान में, द टू हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू एंश्योर शरिया कंप्लायंस, ताकि शरिया कंप्लायंस को एंश्योर किया जा सके। नंबर 1, in diminishing musharaka through contractual partnership, the ratio of profit distribution for each partner should be clearly determined। diminishing musharaka के अंदर contractual partnership के थ्रू एक ratio of profit distribution जो है वो हर पार्टनर की वो clearly determine होनी चाहिए। this may be disproportionate to the ratio of equity or other parties। ये रेशो disproportionate हो सकती है equity की रेशो या दूसरी पार्टी से। This ratio can be changed with mutual agreement due to a change in the ratio of equity share of the parties। इस रेशो को चेंज भी किया जा सकता है म्यूचुअल कंसिडरेशन के साथ या म्यूचुअल डिस्कशन के साथ, अगर रेशो ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो चेंज होता है पार्टीज का। A loss would necessarily be allocated in accordance with the ratio of equity at the time when the loss is incurred। और लॉस जो है वो पार्टिसिपेशन ऑफ इक्विटी के मुताबिक एलोकेट होगा जब भी लॉस इनकर होगा। नो पार्टनर कैन बी गिवन अ लमसम अमाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। किसी भी पार्टनर को लमसम अमाउंट नहीं दी जा सकती इन प्रॉफिट्स में से। एज रिगार्ड्स पार्टनरशिप्स बाय ओनरशिप, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स फॉर्मिंग इज नॉट प्रॉफिट अर्निंग थ्रू बिजनेस। जहां तक पार्टनरशिप बाय ओनरशिप की बात है, मेजर ऑब्जेक्टिव जो इसका है वो ये नहीं है कि प्रॉफिट अर्निंग की जाए थ्रू बिजनेसेस। Therefore, the ratio of profit distribution need not be stipulated in this arrangement। इसलिए रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी जरूरत नहीं है कि उसको स्टिपुलेट किया जाए इस अरेंजमेंट में। ईच पार्टनर विल ओन बोथ रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर। हर पार्टनर जो है वो ओन करेगा
दोनों को, रिस्क को भी रिवॉर्ड को भी, जो कि उसके प्रोपोर्शनेट शेयर से रेलेवेंट होंगे। एज वन पार्टनर कैन लीज हिज पार्ट टू द को पार्टनर, चूंकि एक पार्टनर अपना हिस्सा लीज कर सकता है अपने को पार्टनर को, ही कैन गेट रेंटल ऑन द लीज पार्ट, वो लीज पार्ट पे रेंटल भी ले सकता है। द लेसी हु इज ओनर ऑफ अ पार्ट ऑफ द एसेट, लेसी जो कि ओनर है एक हिस्से का उस एसेट में से, विल गेट द रिवॉर्ड ऑफ हिज पार्ट बाय यूजिंग द एसेट विदाउट पेइंग एनी रेंट, वो उस एसेट के रिवार्ड को नहीं लेगा जितना उससे रिलेट करता था उसको यूज करने के बदले में। एज द लेसी पार्टनर गोज ऑन परचेजिंग द शेयर ऑफ द फाइनेंशियर, जैसे लेसी पार्टनर जो है वो परचेज करने की तरफ जाता है शेयर ऑफ फाइनेंशियर पार्टनर, द रेंटल गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो रेंटल तैसे तैसे डिक्रीज करता चला जाता है। बोथ पार्टीज विल बेयर ओनरशिप रिलेटेड एक्सपेंसेस, दोनों पार्टीज बेयर करती हैं ओनरशिप रिलेटेड एक्सपेंसेस को या लायबिलिटीज को, एंड लॉसेस, और लॉसेस को भी, इफ एनी, इन द केस ऑफ सेल ऑन अ प्रो रेटा बेसिस, सेल के केस में प्रो रेटा बेसिस के ऊपर। सेकेंड इज इन डिमिनिशिंग मुशारका थ्रू पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट, डिमिनिशिंग मुशारका में पार्टनरशिप जो कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है, द लेसी पार्टनर कैन प्रॉमिस टू बाय पीरियोडिकली द शेयर ऑफ द फाइनेंशियल पार्टनर according to the market value or at a price to be agreed at the time of sale of units of the asset. लेसी पार्टनर जो है वो प्रॉमिस कर सकता है पीरियोडिकली शेयर बाय करने का उस फाइनेंशियल पार्टनर का अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू हो उसके ऊपर, या फिर प्राइस जो कि एग्री हुई एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ द एसेट। तो डिमिनिशिंग मुशारका के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनरशिप का, इसके अंदर एक लेसी पार्टनर जो है वो प्रॉमिस कर सकता है कि वो पीरियोडिकली साथ साथ एक हिस्सा जो है वो फाइनेंशियल पार्टनर की इन्वेस्टमेंट का उसको साथ साथ परचेज करता चला जाएगा, किस वैल्यू के ऊपर, या तो मार्केट वैल्यू के ऊपर या फिर उस प्राइस पर जो कि एग्री हुई थी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट परमिटेड टू स्टिपुलेट दैट द ओनरशिप यूनिट्स विल बी बॉट एट अ प्री एग्रीड प्राइस, इसकी भी इजाजत नहीं है कि स्टिपुलेट किया जाए ओनरशिप यूनिट्स को जो कि खरीदे जाएंगे एक प्री एग्रीड प्राइस के ऊपर, और एट देयर ओरिजिनल और फेयर वैल्यू, या फिर अपनी ओरिजिनल या फिर फेयर वैल्यू पर, एज दिस वुड कॉन्स्टिट्यूट अ गारंटी ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ वन पार्टनर बाय द अदर पार्टनर, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक गारंटी शेयर कैपिटल की एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर पर, विच इज प्रोहिबिटेड बाय द शरिया, जिसकी शरिया इजाजत नहीं देती। इन डिमिनिशिंग मुशारका थ्रू पार्टनरशिप बाय ओनरशिप, जबकि डिमिनिशिंग मुशारका जो कि पार्टनरशिप बाय ओनरशिप होती है, वन पार्टनर कैन परचेज ओनरशिप यूनिट्स ऑफ द को पार्टनर, एक पार्टनर ओनरशिप खरीद सकता है अपने को पार्टनर की एट अ प्री एग्रीड प्राइस, पहले से एग्रीड प्राइस के ऊपर। दिस इज अ क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन द टू, ये क्रूशियल डिफरेंस है दो के दरमियान, पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ शरिया कंप्लायंस ऑफ द प्रोसीजर, खास तौर पर इन रिस्पेक्ट ऑफ शरिया कंप्लायंस ऑफ द प्रोसीजर के केस में, एंड द पेमेंट ऑफ प्राइस फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू देयर क्लाइंट्स, और वो जो पेमेंट ऑफ प्राइस है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने क्लाइंट्स के लिए, द Islamic financial institutions that provide housing finance on the basis of diminishing musharaka in Shirkatul Milk generally take promise from the clients that they'll purchase the bank's units of shares at pre-agreed prices, and this is permissible as per Sharia rules. Islamic financial institutions जो कि housing finance देते हैं diminishing musharaka की basis पर Shirkatul Milk में, वो generally एक promise लेते हैं client से कि वो purchase करेंगे बैंक units of shares को एक प्री एग्रीड प्राइस के ऊपर, और ये इजाजत है शरिया रूल्स के अंदर। एक सेकंड के लिए पॉज लूंगा। शुरू करता हूं। डिमिनिशिंग मुशारका इन ट्रेड इज कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, डिमिनिशिंग मुशारका जो है ये ट्रेड के अंदर ये कंडक्ट किया जाता है प्रॉफिट अर्निंग के लिए। Therefore, the price of units of the financial institution cannot be fixed in the promise to purchase by the other partner.
इसलिए जो प्राइस ऑफ यूनिट्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ये फिक्स नहीं की जा सकती इस प्रॉमिस में कि वो परचेज करेगा दूसरे पार्टनर के थ्रू, बिकॉज इट वुड practically mean that the client has guaranteed the principal invested by the financier with or without profit, क्योंकि ये शो करेगा कि यहाँ पर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर की जो है वो गारंटी दी है with or without profit. Therefore, the financial institution either has to agree to sell the units of the ownership on the basis of valuation at the time of the sale of each unit. इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या तो एग्री करना पड़ेगा अपने यूनिट्स ऑफ ओनरशिप बेचने पर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन की बेसिस पर एट द टाइम ऑफ सेल, और अलाउ द क्लाइंट टू सेल दीज यूनिट्स टू एनीबॉडी एल्स एट व्हाटएवर प्राइस ही कैन, या फिर अलाउ करे अपने क्लाइंट को कि वो इन यूनिट्स को बेच दे किसी भी पार्टी को किसी भी प्राइस पर, स्पेसिफिक प्राइस पर। बट एट द सेम टाइम इट वुड ऑफर अ स्पेसिफिक प्राइस टू द क्लाइंट, लेकिन सेम टाइम पर ये एक ऑफर करेगा स्पेसिफिक प्राइस क्लाइंट को, मीनिंग देयर बाय दैट इफ ही फाइंड्स अ परचेजर ऑफ दैट यूनिट एट अ हायर प्राइस, जिसका मतलब है कि अगर उसको कोई परचेजर हायर प्राइस के ऊपर मिल जाता है, ही मे सेल इट टू हिम, तो ये उसको भी बेच सकता है। बट इफ ही वांट्स टू सेल इट टू द फाइनेंशियर, लेकिन अगर ये फाइनेंशियर ही को बेचना चाहता है, द लेटर विल बी एग्रीएबल टू परचेज इट, तो जो दूसरा है वो एग्रीएबल होगा इसको परचेज करने पर एट द प्राइस फिक्स बाय हिम बिफोर हैंड, उस प्राइस पर जो पहले से उसने इसके साथ फिक्स की थी। However, this does not seem to be feasible as it does not serve the purpose of decreasing the equity in any business. लेकिन ये feasible नहीं है चूंकि ये सर्व नहीं करता equity in any business की decreasing purpose को, as required under a diminishing मुशारका agreement, जिसकी जरूरत होती है diminishing मुशारका agreement के अंदर। Therefore, diminishing मुशारका is feasible only in respect of fixed or other assets that can be leased or given for use to the other partner. इसीलिए diminishing मुशारका जो है ये feasible है सिर्फ fixed assets के लिए या दूसरे assets के लिए जिनको लीज किया जा सके और या किसी दूसरे पार्टनर को दिया जा सके इस्तेमाल करने के लिए। तो उम्मीद है डिमिनिशिंग मुशारका समझता आया होगा कि डिमिनिशिंग मुशारका है क्या और इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, कौन कौन सा किस किस केस के अंदर फीजिबल है और किस किस केस में फीजिबल नहीं है। नाउ डिमिनिशिंग मुशारका एज एन इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस, हाउ डिमिनिशिंग मुशारका कैन सर्व द पर्पज ऑफ इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस। Diminishing musharaka can be easily used for the purpose of financing fixed assets by Islamic banks. Diminishing musharaka इस्तेमाल किया जा सकता है fixed assets की फाइनेंसिंग के लिए इस्लामिक बैंक्स के थ्रू, या इस्लामिक बैंक्स diminishing musharaka को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं fixed assets की फाइनेंसिंग के लिए। It includes house financing, इसमें हाउस फाइनेंसिंग शामिल है, मकान बनाने के लिए, मकान खरीदने के लिए फाइनेंसिंग, ऑटो फाइनेंसिंग, कारें खरीदने के लिए पैसा, प्लांट एंड मशीनरी फाइनेंसिंग, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो फिक्स्ड एसेट कि प्लांट और मशीनरी के लिए फाइनेंसिंग, फैक्ट्री और बिल्डिंग फाइनेंसिंग, फैक्ट्री या फिर जो इमारत बनानी है उसकी फाइनेंसिंग, एंड ऑल अदर फिक्स्ड एसेट फाइनेंसिंग, और इसके अलावा जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी फाइनेंसिंग के लिए ऑफ कोर्स इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो डिमिनिशिंग मुशारका को अप्लाई कर सकते हैं। इन द केस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट ओनरशिप इज क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ डिमिनिशिंग मुशारका। हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक ज्वाइंट ओनरशिप क्रिएट की जा सकती है इन द केस ऑफ डिमिनिशिंग मुशारका। द फाइनेंशियल पार्टनर गिव्स हिज अनडिवाइडेड शेयर ऑन लीज टू द पार्टनर यूजिंग द हाउस। जो फाइनेंशियल पार्टनर है वो दे सकता है अनडिवाइडेड शेयर लीज पर पार्टनर को जो कि घर को इस्तेमाल कर रहा है। द क्लाइंट गिव्स रेंट ऑन द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियर, क्लाइंट रेंट देता है फाइनेंशियर को, एंड पीरियोडिकली परचेजेस द यूनिट्स ऑफ द पार्टनर्स ओनरशिप, और पीरियोडिकली इसको परचेज करता है अपनी ओनरशिप को पार्टनर से। द मोडस ऑपरेंडी अप्रूव्ड बाय शरिया स्कॉलर्स इज दैट 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड इनटू सेपरेटली। मोडस ऑपरेंडी जो है शरिया स्कॉलर्स का वो प्रूव करता है 3 कॉन्ट्रैक्ट्स को जो सेपरेटली एंटर होते हैं, ensuring that each contract is independent of the other 2, इस चीज को इंश्योर करते हुए कि हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाकी 2 कॉन्ट्रैक्ट से इंडिपेंडेंट है।
द सीक्वेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी, इनकी जो सीक्वेंसिंग है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए. नंबर 1, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स टू क्रिएट अ जॉइंट ओनरशिप. एक कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टनर्स के दरमियान में होगा जॉइंट ओनरशिप क्रिएट करने के लिए. द क्लाइंट पार्टनर मेक्स अ प्रॉमिस, जो क्लाइंट पार्टनर है वो वादा करता है, बिफोर और आफ्टर द लीज एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट से पहले या बाद में, इज फाइनलाइज, जब वो फाइनलाइज हो जाए, टू परचेज द शेयर ऑफ द फाइनेंशियल पार्टनर, फाइनेंशियल पार्टनर का शेयर परचेज करने का. तो पहली कंडीशन क्या हुई कि कॉन्ट्रैक्ट जो कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा पार्टनर्स के दरमियान इसकी ज्वाइंट ओनरशिप का, और क्लाइंट जो है, जो क्लाइंट पार्टनर है वो वादा करता है फाइनेंशियल पार्टनर के साथ कि वंस लीज इज फाइनलाइज्ड तो वो पीरियोडिकली इसका हिस्सा खरीदना शुरू कर देगा, मतलब अपनी इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसे देना शुरू करेगा कि वो एसेट आहिस्ता आहिस्ता इसका होता चला जाए. The financing partner gives units of his share to the client on lease. जो फाइनेंसिंग पार्टनर है वो अपने यूनिट्स ऑफ शेयर देता है क्लाइंट को लीज में. देन द क्लाइंट पार्टनर गोज ऑन परचेजिंग द यूनिट्स ऑफ ओनरशिप. क्लाइंट पार्टनर जो है वो परचेज करता रहता है यूनिट्स ऑफ ओनरशिप फाइनेंसिंग पार्टनर के, एज पर हिज प्रॉमिस, जो उसने वादा किया. अकॉर्डिंगली द रेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो ऐसे ऐसे रेंट भी डिक्रीज होता चला जाता है. तो 3 कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जॉइंट ओनरशिप का पार्टनर्स के दरमियान, और एक जो क्लाइंट ओनर है वो वादा करता है कि फाइनेंसिंग पार्टनर से कि लीज एक दफा फाइनलाइज होगी तो फिर वो पीरियोडिकली इसको खरीदना शुरू कर देगा. दूसरे नंबर के ऊपर जो फाइनेंसिंग पार्टनर है ये ऑफ कोर्स अपना जो शेयर है, यूनिट ऑफ शेयर है, वो उसको साथ साथ देता चला जाएगा. तीसरे नंबर के ऊपर जब क्लाइंट पार्टनर जो है वो खरीदता रहेगा फाइनेंसिंग पार्टनर से उसकी ओनरशिप का शेयर एज पर प्रॉमिस, और इस तरीके से जैसे जैसे वो उसको ओन करता चला जाएगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ रेंट भी जो है वो डिक्रीज करती चली जाएगी, क्योंकि वो हिस्सा जो वो खुद से ओन करता है उसका तो किराया पे नहीं करेगा. फाइनेंसिंग बाय अ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ डिमिनिशिंग मुशारका कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द एसेट्स इन्वॉल्व्ड. ये जो फाइनेंसिंग बाय अ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ डिमिनिशिंग मुशारका की बेसिस पर जब बैंक फाइनेंस करता है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में फाइनेंस करता है जो डिपेंड करते हैं उसके अंदर कौन सा एसेट इन्वॉल्व है. इसका मतलब है मल्टीपल एसेट्स के लिए जो डिमिनिशिंग मुशारका है वो मल्टीपली अप्लाई होता है, डिफरेंटली अप्लाई होता है. सम एसेट्स कैन बी लीज्ड आउट, कुछ एसेट्स को ऑफ कोर्स लीज पे किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ हाउस फाइनेंसिंग एंड फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जैसे लीज जो है वो हाउस फाइनेंसिंग की जा सकती है या फिर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के केस में किया जा सकता है. एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल नेचर वुड नॉट इन्वॉल्व लीजिंग, वो एसेट्स जो कमर्शियल नेचर के हैं उनमें लीजिंग इन्वॉल्व नहीं होती. डिमिनिशिंग मुशारका इन ट्रेड. If leasing is not involved and there is a simple partnership in which 2 partners start a business, for example on a 40-60 basis, they can agree that the share units of one partner will be periodically sold to the other partner. अगर लीजिंग इन्वॉल्व नहीं है और एक सिंपल पार्टनरशिप है जिसमें 2 लोग मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल 40-60 रेशो के ऊपर, तो वो एग्री हो सकते हैं कि एक पार्टनर अपने शेयर यूनिट जो है उनको बेचेगा पीरियोडिकली दूसरे पार्टनर को, who will keep on purchasing them, और वो उनको खरीदता रहेगा on a gradual basis until the second party is out of the business, उस वक्त तक जब तक कि सेकंड पार्टी बिजनेस से बाहर नहीं निकल जाती. तो मतलब क्या हुआ कि ये उस वक्त तक ये एक एग्रीमेंट ऐसा होगा जहां पर एक बंदा दूसरे के शेयर्स खरीदता रहेगा उस वक्त तक कि जब तक पहली पार्टी जो है वो बाहर नहीं हो जाती. As this contract has been entered into the profit earning by the partners, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट अर्निंग के लिए एंटर हुआ है पार्टनर्स के थ्रू, एंड ऑल्सो डज नॉट इन्वॉल्व लीजिंग, और लीजिंग इन्वॉल्व नहीं करता, लाइक द केस ऑफ अ हाउस और अ व्हीकल, एक घर या व्हीकल की तरह. द प्राइस ऑफ शेयर यूनिट्स कैन बी फिक्स्ड इन द प्रॉमिस टू सेल. तो जो प्राइस ऑफ शेयर यूनिट है उसको फिक्स नहीं किया जा सकता एट द टाइम ऑफ वो जो प्रॉमिस था उसको बेचने का. One partner may agree to sell the units of the basis of valuation of the business at the time of the purchase of each unit. एक पार्टनर एग्री कर सकता है यूनिट्स को बेचने पर on the basis of valuation of business जिस वक्त वो उसको खरीदना चाह रहा है. Of course इसकी वैल्यूएशन जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है. Such valuation may be carried out in accordance with the recognized principles by experts. ये वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स के थ्रू होगी,
whose identity may be agreed upon between the parties when the promise is signed. जिसकी आइडेंटिटी एग्री होगी दो पार्टीज के दरमियान, मतलब उसकी आइडेंटिटी दोनों पार्टीज को माननी चाहिए जब प्रॉमिस साइन हो रहा है। एट द टाइम ऑफ परचेज द सेल शुड बी एग्जीक्यूटेड थ्रू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब परचेज का वक्त आएगा तो सेल को एग्जीक्यूट होना चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के रूल के मुताबिक। ऑल्दो एंटरप्रेन्योर पार्टनर इन डिमिनिशिंग musharaka for trade has an inherent motivation to acquire full ownership by purchasing shares from the financer, the Sharia experts are not inclined to make the purchase binding on him. Although entrepreneur जो है entrepreneur partner diminishing musharaka के अंदर ट्रेड के लिए एक inherent motivation रखता है ओनरशिप को एक्वायर करने की, लेकिन शरिया एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस पे इंक्लाइन नहीं है कि इसको उसके ऊपर बाइंडिंग बना दिया जाए। According to resolution number 2 of the Jeddah-based OIC Fiqh Academy and also research undertaken by the IRTI, the sale provision of the contract can be made binding only on the financial partner and the sale will be effected at the prices prevailing in the market at the time of actual sale. इस एकेडमी के मुताबिक रेजोल्यूशन नंबर 2 को जहन में रखते हुए रिसर्च जो IRTI में हुई उसके तहत सेल प्रोविजन जो है सिर्फ उसको बाइंडिंग बनाया जा सकता है फाइनेंशियल पार्टनर के ऊपर, और जो सेल है वो इफेक्ट होगी ऑफ कोर्स प्राइसेस के साथ जो मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रही हैं। आफ्टर क्रिएटिंग जॉइंट ओनरशिप द बैंक मे साइन अ वन साइडेड प्रॉमिस टू सेल डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द शेयर ऑफ इट्स ओनरशिप पीरियडिकली and may undertake that when the client purchases a unit of its share, the rent of the remaining units will be reduced accordingly. Thus, an Islamic bank will be making a binding promise to offer a specific part of its ownership of the project for sale on a specified future date for a price that will be determined at the time of actual sale. The entrepreneur partner may voluntarily buy the share of the financier at the prices prevailing at the time of sale in the stock market or at a price determined with the free consent of the parties. एंटरप्रेन्योर पार्टनर जो है वो वॉलंटरली खरीद सकता है शेयर्स फाइनेंसर के उन प्राइसेस के ऊपर जो मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रही हैं उस वक्त जब इनको बेचा जाएगा, या प्राइस डिटरमिन जो की जाएगी विद द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। सेकंड इज प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन इन डिमिनिशिंग मुशारका। प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी डिमिनिशिंग मुशारका के अंदर? द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन अ टिपिकल डिमिनिशिंग मुशारका अरेंजमेंट। ये एक सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होगी जो कि नीचे बयान की जा रही है एक टिपिकल मुशारका अरेंजमेंट के अंदर। एज बीइंग यूज्ड बाय इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप बाय ओनरशिप। नंबर 1, क्रिएशन ऑफ ज्वाइंट ओनरशिप थ्रू अ मुशारका एग्रीमेंट। मुशारका एग्रीमेंट के थ्रू एक ज्वाइंट ओनरशिप क्रिएट होगी। द कस्टमर एंड द इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिकम को ऑनर्स इन अ ज्वाइंट प्रॉपर्टी। कस्टमर और इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो को ऑनर्स बनेंगे इस ज्वाइंट प्रॉपर्टी के अंदर। इफ लीगल टाइटल टू द प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी विद द कस्टमर, अगर लीगल टाइटल ऑलरेडी कस्टमर के पास है, देयर कैन बी एन एग्रीमेंट टू द इफेक्ट दैट द इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल एक्वायर अ सर्टेन शेयर इन द मुशा प्रॉपर्टी एंड दिस वुड इन्वॉल्व अ सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट, और ये अरेंजमेंट जो है वो सेल एंड लीज बैक का होगा। रेंट एग्रीमेंट, बोथ पार्टीज एग्री that the Islamic financial institution will lease its undivided share to the client partner against a stipulated rent to be governed under the rules of ijara. दोनों पार्टीज अग्री करती हैं कि इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो लीज करेगा अपना अनडिवाइडेड शेयर क्लाइंट पार्टनर को अगेंस्ट अ स्टिपुलेटेड रेंटल जो कि गवर्न होगा अंडर द रूल्स ऑफ इजारा। दिस एग्रीमेंट इज साइंड आफ्टर द मुशारका एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट मुशारका एग्रीमेंट के बाद साइन होता है। इट कंटेन्स डिटेल्स अबाउट रेंट, द फार्मूला ऑफ इट्स कैलकुलेशन एंड अ स्केड्यूल फॉर द पीरियड ऑफ लीज। इसके अंदर डिटेल रेंट की भी मौजूद होती है, इसकी कैलकुलेशन का फार्मूला भी होता है और स्केड्यूल ऑफ पीरियड ऑफ लीज भी मेंशन होता है। अंडरटेकिंग टू परचेज यूनिट्स ऑफ द बैंक शेयर इन द ज्वाइंट प्रॉपर्टी, दिस इज अ यूनिलेटरल प्रॉमिस बाइंडिंग ऑन द प्रोमिसर ओनली। ये एक यूनिलेटरल प्रॉमिस होता है जो कि सिर्फ बाइंडिंग होती है प्रोमिसर के ऊपर। Either the client or the bank can make this promise. बैंक या client दोनों में से कोई भी ये promise कर सकता है। If the arrangement is based on shirkatul milk, it may contain a price schedule at which the client has to purchase the units from time to time. अगर arrangement shirkatul milk पर बेस करता है तो इसके अंदर प्राइस schedule भी शामिल हो सकता है जो कि client को परचेज करना होगा
यूनिट्स को फ्रॉम टाइम टू टाइम. इट ऑल्सो गिव्स डिटेल्स अबाउट द सिचुएशन इफ द क्लाइंट वांट्स टू एनी टाइम. इसमें ये भी डिटेल्स हो सकती हैं उस सिचुएशन की जहां पर क्लाइंट किसी भी वक्त उसको डिमांड कर सकता है. टू परचेज मोर शेयर्स देन प्रोवाइडेड इन द म्यूचुअली अग्रीड स्केड्यूल. जो म्यूचुअली अग्रीड स्केड्यूल में शेयर्स डिसाइड हैं उनसे ज्यादा भी डिमांड कर सकता है. द अरेंजमेंट ऑल्सो कंटेन्स डिटेल्स अबाउट द नेचर ऑफ सिक्योरिटी और गारंटी टू बी प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट. अरेंजमेंट में वो डिटेल्स भी हो सकती हैं जो कि रेलेवेंट होंगी नेचर ऑफ सिक्योरिटी या गारंटी से जो कि क्लाइंट प्रोवाइड करेगा. नॉर्मली इन द इक्विटेबल मोर्टगेज ऑफ द फाइनेंस प्रॉपर्टी. नॉर्मली जो इक्विटेबल मोर्टगेज है फाइनेंस प्रॉपर्टी के अंदर, द बैंक मे रिक्वायर एडिशनल सिक्योरिटी टू सिक्योर इट्स इंटरेस्ट. बैंक एडिशनल सिक्योरिटी भी मांग सकता है अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द क्लाइंट. खास तौर पर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द क्लाइंट के पर्सपेक्टिव में. Thus, the customer pays rent for the use of the bank's share in the property. इसलिए कस्टमर रेंट पे करता है बैंक शेयर को इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपर्टी में, एंड गोज ऑन परचेजिंग अ पार्ट ऑफ द बैंक शेयर पीरियोडिकली. और इसको खरीदता रहता है बैंक के शेयर को पीरियोडिकली अंटिल द ओनरशिप ऑफ द एसेट इज ट्रांसफर टू हिम. जब तक ओनरशिप इसको ट्रांसफर हो नहीं जाती. द फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड फॉर बाइंग अ हाउस, building a house, renovation of a house, and for replacing interest-based housing loans with a Sharia-compliant arrangement, balance transfer facility. Other fixed assets can also be financed through diminishing musharaka. और assets को भी और fixed assets को भी finance किया जा सकता है diminishing musharaka के through. तो यहाँ तक सारी बात थी विद रिस्पेक्ट टू मुदारबा, मुशारका और डिमिनिशिंग मुशारका से रेलिवेंट. उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी. नाउ लेट्स डिस्कस द समरी एंड कंक्लूजन व्हाटएवर वी डिस्कस्ड इन होल ऑफ द चैप्टर. वी मे समराइज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ शिरका इन द फॉलोइंग वे. दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सो बी अटेंटिव ताकि आप लोग अब इनको समरी को समझ सके. ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ शिरका यूज्ड इन द बुक्स ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, Shirka al-Anan is of more relevance to partnership business by banks and financial institutions. जो various kinds of शिरका इस्तेमाल होती हैं किताबों के अंदर इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की, शिरका अल-अनान जो है ये ज़्यादा रेलेवेंस की है पार्टनरशिप बिजनेस से बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट में. There is a consensus of the jurists that shirka is not only a legitimate contract in Islam but is also preferable over the modes based on trade and leasing. एक म्यूचुअल कंसेंसस है इसके ऊपर ज्यूरिस्ट का कि शिरका जो है ये सिर्फ एक लेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है इस्लाम में, बल्कि ये प्रेफरेबल मोड ऑफ फाइनेंस भी है ट्रेड और लीजिंग के केस में. द टर्म मुशारका इंट्रोड्यूस्ड बाय कंटेम्प्रेरी शरिया स्कॉलर्स ऑल्सो मीन्स ज्वाइंट कमर्शियल एंटरप्राइज डूइंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय ज्वाइंट फंड्स. ये जो टर्म मुशारका है जो कि कंटेम्प्रेरी शरिया स्कॉलर्स ने इंट्रोड्यूस की है, इसका मतलब ज्वाइंट कमर्शियल एंटरप्राइज का है जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय ज्वाइंट फंड्स परफॉर्म करती है. कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स कैन बी अनइक्वल एंड शुड प्रेफरेबली बी इन द नेचर ऑफ एनी प्रिवेलेंट करेंसी. ये जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है पार्टनर्स की तरफ से ये अनइक्वल भी हो सकता है और प्रेफरेबली इसको प्रिवेलेंट करेंसी में ही होना चाहिए. If it is in the shape of commodities, अगर ये commodities की shape में है, the market value should be determined with mutual consent to determine the share of each partner for sharing the profit or bearing the loss, if any. अगर ये commodities की shape में है तो market value जो है उसको determine होना चाहिए mutual consent के साथ, और इनका जो share है हर partner का वो भी म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ डिटरमिन होना चाहिए, और प्रॉफिट और जो बेयरिंग लॉस है उसकी रेशियो भी म्यूचुअल कॉन्सेंट से डिसाइड होनी चाहिए इफ एनी. इट मे आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ इक्वल यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग करेंसी कॉल्ड शेयर्स इन द केस ऑफ परपेचुअल मुशारका. ये इन द फॉर्म ऑफ इक्वल यूनिट्स भी हो सकती है जिनको शेयर्स बोलते हैं परपेचुअल मुशारका के केस में, एंड सर्टिफिकेट्स और सुकूक्स इन द केस ऑफ अ रिडीमेबल पार्टनरशिप. रिडीमेबल पार्टनरशिप में इन द शेप ऑफ सर्टिफिकेट या सुकूक भी हो सकती है. द शेयर्स और सुकूक आर नेगोशिएबल. शेयर्स और सुकूक जो है नेगोशिएबल हैं, एंड अ शेयर होल्डर कैन सेल हिज शेयर्स टू एनीवन इन द मार्केट. और शेयर होल्डर जो है अपने शेयर्स किसी को भी बेच सकता है मार्केट के अंदर. Obtaining formal consent about the entry or exit of members into limited companies is not compulsory from an Islamic point of view.
एक फॉर्मल कॉन्सेंट लेने की जरूरत नहीं होती है एंट्री या एग्जिट के लिए मेंबर्स को लिमिटेड कंपनीज में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक. देन power of appropriation in the property and participation in the affairs of the musharaka may be disproportionate to the capital invested by the partners. ये जो power of appropriation है या इसकी जो participation है वो सिर्फ capital investment की proportion में नहीं भी हो सकती. Number next is in musharaka and also in mudaraba the ratio of profit distribution may differ from the ratio of investment. मुशारका में और इवन इन मुदारबा में भी रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है और रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट से फर्क भी हो सकती है. बट द लॉस मस्ट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच ऑफ द पार्टनर. लेकिन लॉस जो है उसको लाजमी डिवाइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट. इट इज नॉट अलाउड टू फिक्स अ लमसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द पार्टनर्स. किसी भी पार्टनर के लिए लमसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है उसको फिक्स करने की इजाजत नहीं है. और एनी रेट ऑफ प्रॉफिट टाइड अप विद हिज इन्वेस्टमेंट, और कोई भी रेट ऑफ प्रॉफिट जो कि इसकी इन्वेस्टमेंट से टाइड अप हो. स्कॉलर्स हैव अप्रूव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टेड प्रॉफिट. स्कॉलर्स ने प्रोजेक्टेड प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को इजाजत दी है, बट दिस इज सब्जेक्ट टू फाइनल सेटलमेंट एट द एंड ऑफ द टर्म. लेकिन ये फाइनल सेटलमेंट के वक्त जो है वो कंसिडर किया जा सकता है, मीनिंग दैट any amount so drawn by any partner shall be treated as an on account payment and will be adjusted to the actual profit he may deserve at the end of the term. कोई भी प्रॉफिट अगर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ मिलता है तो उसको एक ऑन अकाउंट पेमेंट कंसिडर किया जाएगा, जिसको एडजस्ट किया जाएगा आखिर में जब एंड ऑफ टर्म होगी जितना वो डिजर्व करता था. देन इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू वर्क फॉर द जॉइंट वेंचर, अगर तमाम पार्टनर्स किसी एक जॉइंट वेंचर के लिए काम करने को तैयार हो जाते हैं, ईच वन ऑफ देम शैल बी ट्रीटेड एज एन एजेंट ऑफ द अदर. हर एक दूसरे का एजेंट के तौर पे कंसिडर होगा इन ऑल द मैटर्स ऑफ द बिजनेस, एंड एनी वर्क डन बाय वन ऑफ देम इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस शैल बी डीम्ड टू बी ऑथराइज्ड बाय ऑल द पार्टनर्स. और उनमें से कोई भी कोई काम करता है बिजनेस से रेलिवेंट तो ऑथराइजेशन समझी जाएगी तमाम पार्टनर्स की तरफ से. द पार्टनर्स मे एग्री अपॉन अ कंडीशन दैट द मैनेजमेंट शैल बी कैरिड आउट बाय वन ऑफ देम. पार्टनर्स इस बात पे भी एग्री कर सकते हैं कि इनमें से एक बंदा जो है वो सारी की सारी मैनेजमेंट परफॉर्म करेगा, एंड नो अदर पार्टनर शैल वर्क फॉर द मुशारका, और इनमें से कोई और जो मुशारका के लिए काम नहीं करेगा. इन दिस केस द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एलोकेटेड टू अ स्लीपिंग पार्टनर शैल नॉट एक्सीड द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट. इस केस में जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट एलोकेटेड है स्लीपिंग पार्टनर का वो एक्सीड नहीं करेगा रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट से. Next is, in the case of running shirka business, the concept of daily product can be used for determining the share of each partner in the profit accrued. Running shirka business के अंदर ये जो daily product का concept है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है उनके हर पार्टनर के profit accrued के शेयर को डिटरमिन करने के लिए. मुशारका और मुदारबा should never mean the advancing of money to get an ex ante return. मुशारका या मुदारबा को कभी भी मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये एडवांसिंग ऑफ मनी है एक एक्स आंट रिटर्न लेने के लिए. इट मीन्स पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस एंड शेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ बोथ प्रॉफिट एंड लॉस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. A financier on the basis of shirka must share the loss incurred by the business to the extent of his financing. एक फाइनेंसर जो है वो शिरका के अंदर लॉस को शेयर करेगा सिर्फ उस हद तक जहां तक इसकी फाइनेंसिंग थी. The loss suffered by each partner must be exactly in the proportion of his investment. जो लॉस सफर होगा हर पार्टनर को वो exactly इसकी इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में होगा. The basis of profit sharing has to be defined beforehand without any preemptive right to any of the parties. Mudarba is an essential mode for the establishment and operation of Islamic financial institutions. It serves as a basis of business to be conducted by combining funds and the expertise of different groups of people. ये बेसिस ऑफ बिजनेस प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ फंड्स को कंबाइन करके, और सिर्फ फंड्स को नहीं एक्सपर्टीज को भी कंबाइन करके डिफरेंट ग्रुप्स की किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए. फॉर द एसेट साइड हाउएवर मुदारबा इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी हाई रिस्क फाइनेंसिंग एक्टिविटी. एसेट साइड पर मुदारबा को कंसिडर किया जाता है एक बहुत हाई रिस्क फाइनेंसिंग एक्टिविटी के तौर पर, मेनली ड्यू टू द मॉरल हैजर्ड, एडवर्स सिलेक्शन and lack of banks' expertise in project evaluation and related technical matters. Islamic banks may use mudarba
albeit with proper care and risk management to finance the business of those who are capable to work, whether they are professionals like physicians or engineers or traders and craftsmen. It can also be used without much risk of loss in foreign trade financing. Musharaka can be used for foreign and inland trade financing, project financing directly or through securitization. Mudarba Sukuk can be issued to mobilize funds and strengthen trading and industrial activities. मुदारबा सुकूक इशू किया जा सकता है फंड्स को मोबिलाइज करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रेडिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को. एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कैन मैनेज सच फंड्स फॉर कंडक्टिंग बिजनेस फॉर देयर बेनिफिट. एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं वो मैनेज कर सकती हैं इन फंड्स को अपने बिजनेसेस को कंडक्ट करने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, एंड ऑल्सो दैट ऑफ द सुकूक होल्डर्स, और सुकूक होल्डर्स के लिए भी. दिस कुड जनरेट हायर रेट्स ऑफ रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर्स relative to the return realizable on any interest based investment. ये जनरेट कर सकता है हाई रेट्स ऑफ रिटर्न को उन इन्वेस्टर्स के लिए, फॉर द इन्वेस्टर्स जो कि रिलेटिव टू द रिटर्न रियलाइजेबल हैं ऑन एनी इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट के. इन द केस ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स द इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मे फॉर्म अ कंसोर्शियम. बड़े प्रोजेक्ट्स के केस के अंदर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक कंसोर्शियम बना सकते हैं टू इशू सर्टिफिकेट्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. जनरल पब्लिक को सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए. नाउ आफ्टर कंक्लूडिंग समरी, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मुदारबा. फाइनेंसिंग साइड के ऊपर इसका ट्रीटमेंट क्या है. रिकग्निशन ऑफ मुदारबा कैपिटल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. रिकग्नाइज व्हेन पेड टू मुदारिब और प्लेस्ड अंडर हिज डिस्पोजिशन. इसको उस वक्त रिकग्नाइज होना चाहिए जब मुदारिब को दिया जाता है और उसकी डिस्पोजिशन में ही इस्तेमाल होना चाहिए. इफ कैपिटल इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, ईच इंस्टॉलमेंट इज रिकग्नाइज व्हेन पेड. अगर कैपिटल इंस्टॉलमेंट्स में पे हो रहा है तो हर इंस्टॉलमेंट उस वक्त रिकग्नाइज होगी जब वो पे हो जाएगी. प्रेजेंटेड एज मुदारबा फाइनेंसिंग, इफ कैपिटल इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट्स, इट इज रिपोर्टेड एज नॉन मॉनिटरी एसेट्स. अगर कैपिटल नॉन मॉनिटरी एसेट्स के तौर पर दिया जा रहा है तो इसको नॉन मॉनिटरी एसेट्स के तौर पर ही शो होगा. मेजरमेंट ऑफ मुदारबा कैपिटल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मुदारबा कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट के वक्त कैसे मैयर होता है. कैपिटल प्रोवाइडेड इन कैश इज मेजर्ड बाय द अमाउंट पेड और अमाउंट प्लेस्ड अंडर द डिस्पोजिशन ऑफ द मुदारिब. कैपिटल कैश में मैयर किया जाता है जो कि अमाउंट पे की जाती है और उसकी डिस्पोजिशन में रखी जाती है मुदारिब की. Capital provided in kind is measured at fair value of the assets and any difference between the fair value and the book value is recognized as profit or loss. अगर in kind capital आया है तो उसकी fair value determine की जाती है और वो जो fair value है उसका difference अगर book value से कोई है तो उसको profit या loss के तौर पे represent किया जाता है. Expenses incurred are not considered as part of the मुदारबा capital. जो अखराजात incur होते हैं वो मुदारबा capital का हिस्सा नहीं होते unless otherwise agreed by both parties. जब तक दोनों पार्टीज इस पे एग्री नहीं हो जाती. Measurement at the end of the financial period. Apply the same measurement criteria as used at the time of contracting. However, any repayment made to the bank is to be deducted from the mudarba capital. Any loss at the inception of work shall be borne by the Islamic Bank, and if the loss occurs after the inception of work, it shall not affect the measurement of mudarba capital. If the whole of the capital is lost without any misconduct or negligence of the mudarib, the mudarba shall be terminated and the Islamic Bank shall recognize it as loss. If the mudarba is terminated or liquidated and capital is not paid, it shall be recognized as a receivable due from mudarib. Recognition of the bank's share in profits or losses. Bank का share कैसे profit या losses में determine होता है, recognize होता है. Profits or loss on mudarba transactions which commence and end during the same financial period are recognized at the time of liquidation. The Islamic Bank's share of profits on mudarba financing that continues for more than one financial period is recognized to the extent of profit distribution and the loss is deducted from the mudarba capital. Share of profits is recognized as a receivable due from the mudarib if he does not pay after liquidation or settlement of account is made. Losses are recognized at the time of liquidation by reducing the mudarba capital. Then, accounting treatment of musharaka.
Recognition of the bank's share in Musharaka capital at the time of the contract. It is recognized when it is paid to the partner or made available to him on account of Musharaka. It is presented at Musharaka financing in the financial statements. Financial statements में भी Musharaka financing के तौर पे ही present किया जाता है. Measurement of the bank's share in Musharaka capital at the time of contracting. The capital provided in cash is measured by the amount paid or made available to the partner on account of Musharaka. Cash में जो है वो record किया जाता है. Capital provided in kind is measured at fair value of the assets, and any difference between the fair value and the book value is recognized as profit or loss, just like Mudarba. Expenses incurred are not to be considered part of Musharaka capital unless otherwise agreed by both parties. Measurement at the end of the financial period. It is measured as share in the constant Musharaka capital is measured at historical cost. Share in diminishing Musharaka is measured at historical cost after deducting the share transferred to the partner. Such transfer is made by sale at fair value in diminishing Musharaka on Shirkal Aqd. The difference between the historical cost and the fair value is recognized as profit or loss. If diminishing Musharaka is liquidated before complete transfer is made to the partner, the difference between the book value and the recovered amount is recognized in the income statement of the bank. If Musharaka is terminated or liquidated, any amount that remains unpaid is recognized as a receivable due from the partner. Recognition of the Islamic bank's share in profit or loss. Profits or loss on Musharaka transactions which commence and culminate during the same financial period are recognized at the time of constructive liquidation. The Islamic bank's share of profits on Musharaka financing that continues for more than one financial period is recognized to the extent of profit distribution, and share of loss is deducted from the Musharaka capital. The treatment mentioned in the above point shall apply to a diminishing Musharaka after taking into consideration the decline in the Islamic bank's share in Musharaka capital and its profit or loss. Share of profits is recognized as a receivable due from the partner if he does not pay the Islamic bank's due share of profits after liquidation or settlement of account is made. Loss incurred due to negligence or misconduct of the partner is recognized as a receivable from the partner. तो ये तो था मुदारबा और मुशारका का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी. तो आज यहाँ तक ही रखते हैं. बिफोर एंडिंग द लेक्चर लेट्स हैव अ समरी कि आज हमने क्या डिस्कस किया. We started from modern application of the concept of shirka. शिरका का modern application क्या है, कहाँ कहाँ पर हम इसे apply कर सकते हैं. We discussed in very much detail. Then we talked about diminishing musharaka. इसका इंट्रोडक्शन दिया, इसमें क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी, वो डिस्कस्ड इन डिटेल, इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट डिमिनिशिंग मुशारका एज एन इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस. इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस के तौर पर डिमिनिशिंग मुशारका को डिस्कस किया और इसको देखा कि कौन कौन से स्कूल्स ऑफ थॉट के तहत दिस इज अलाउएबल. देन वी टॉक्ड अबाउट समरी एंड कंक्लूजन. समरी और कंक्लूड करने के बाद वी टॉक्ड अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मुदारबा एंड मुशारका. उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा. तो इस उम्मीद पर आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ कि ज़िंदगी रही तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.